गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी नाशिक क्लासेस। वीएम एकेडमी के इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। होप सो आपको सभी लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। अगर कोई फीडबैक डाला तो भी चलेगा, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी डालो। मैंने सभी टॉपिक बेसिक से क्लियर किए हैं। बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं सभी टॉपिक उस आधार पर लिए हैं। तो होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 16 एज़ पर न्यू सिलेबस। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा और इसके बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें पूरे चैप्टर के नोट्स देने वाली हूँ। सभी टॉपिक्स के कंप्लीट नोट्स इजी लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं एज़ पर न्यू सिलेबस। तो सब लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके सभी नोट्स आपकी नोटबुक में कॉपी कर लो ताकि आपको इजीली समझ में आएगा सब कुछ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं और रेजोनेंस क्या होते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं। पहले आप वो वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Resonance. The increase in the amplitude when the driving force is close to the natural frequency of the oscillation is called resonance. Resonance is when the natural frequency of a system is equal to the frequency of an external force. This results in oscillating and an increase in amplitude. Take two hollow boxed A and B. Open it one side. Place two boxes with their open sides facing each other with some distance apart. Mount two tuning forks of same natural frequencies, one each on the two boxes. Vibrate the tuning fork on the box A. The tuning fork on box B also begins to vibrate due to resonance. When A is vibrated, the air inside the box A vibrates, and these vibrations are transferred into the box B, and in turn vibrates the tuning fork on B. Activity on forced oscillations and resonance. Vibrate a tuning fork and place it on a table or bench. Then we can hear a loud sound, which is because the tabletop is forced to vibrate under the influence of the vibrating tuning fork. Suspend four pendulums A, B, C, D, in which A and C are of same lengths, B and D are of different lengths. When pendulum A is oscillated, the other three pendulums also start oscillating. A and C are in resonance with each other, and the oscillations of B and D are called forced oscillations. Examples: when soldiers are crossing a suspension bridge, they are asked to break their steps. This is because when the frequency of the marching coincides with the natural frequency of the bridge vibrates with larger amplitude and collapses due to resonance. A radio is tuned to obtain a clear sound, such that the frequency of the radio have to coincide with the frequency of the incoming electromagnetic waves. We can find the velocity of sound using resonance phenomenon with resonating air column experiment.
बच्चों, जो हमने वीडियो में देखा वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने देखा फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशंस क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया है जो अपनी मीन पोजीशन से पे है। अगर मैं इसको एक बार फोर्स लगा के हटा दूँ और छोड़ दूँ तो वो अपने आप ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा। देखो एक बार मैंने फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप ऑसिलेट हो रहा है। अभी इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑसिलेट हो रहा है। मतलब जब एक बार हम इस चीज़ को फोर्स लगाए तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। When a body capable of oscillating is displaced from its equilibrium position and then left free, it begins to oscillate with a definite frequency. And this frequency, ये frequency किसके ऊपर डिपेंड करती है? It depends upon the intrinsic properties like shape, elasticity, etc. of the body. और उसी को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ऐसे ऑसिलेशंस को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। जैसे कि ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है, एक बार फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपने आप ऑसिलेट होता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। तो फ्री ऑसिलेशंस जो है उसके एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से सिंपल पेंडुलम ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम डिस्प्लेस कर देते हैं एक बार उसकी मीन पोजीशन से एंड देन लेफ्ट फ्री, देन इट एग्जीक्यूट्स फ्री ऑसिलेशंस, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है, जो कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है देखो, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग और एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू 1/2π√g/L, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम की। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, ऑलरेडी ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल से हमने उस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो अपने आप ABC पॉइंट से ऑसिलेट हो रहा है और ये उसकी लेंथ। और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का, जो कि ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक बार रबर पैड के स्ट्रक करके हम छोड़ दें तो वो अपने आप ऑसिलेट होने लगता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ट्यूनिंग फॉर्क आप लोगों ने अपनी लैबोरेटरी में देखा होगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इट्स थिकनेस एंड द मटेरियल विच इट इज़ मेड। जो मटेरियल से वो बना है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं रहा तो द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री ऑसिलेशंस वुड रिमेन कांस्टेंट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ड्रैग फोर्स नहीं है, तो वो कांस्टेंट। यहाँ पे रीटेक देखते हैं हम लोग, एक बार इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और छोड़ दिया तो वो अपने आप वाइब्रेट हो रहा है, वापस उसको स्ट्रक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्री ऑसिलेशंस का। अब देखते हैं फोर्स ऑसिलेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग गर्ल है कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है, हर बार एक्सटर्नल, तो कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब व्हेन अ बॉडी इज मेंटेन इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अदर दैन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशंस। मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो बॉडी कंटिन्यूसली ऑसिलेट होती है, हर बार उसको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्योंकि ये लड़की यहाँ पे फोर्स लगा रही है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से वो ऑसिलेट हो रही है। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक फोर्स। तो बॉडी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ द फोर्स वाइब्रेशन, कंटिन्यूसली ऑसिलेट हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिवन फोर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें एम्पलीट्यूड वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ये दोनों जब इक्वल होती है तो बॉडी वाइब्रेट होती है विद द लार्ज एम्पलीट्यूड, और उसी लार्ज एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड मिल जाए। देखो एग्जांपल है स्विंग का लेते हैं। स्विंग में कैसे बॉडी वाइब्रेट होगी? जब एक्सटर्नल फोर्स और नेचुरल फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी वाइब्रेट होंगी। तो
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेजोनेंस। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट विद द लार्ज एम्पलीट्यूड कॉल्ड एज रेजोनेंस। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सोल्जर्स मार्चिंग जो होता है, जब सोल्जर्स मार्च करते हैं लेफ़्ट राइट जाते हैं किसी ब्रिज के ऊपर, जब वो पासिंग करते हैं, ब्रिज से पास होते हैं, तो उनको मार्चिंग स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उनका मार्चिंग और ब्रिज का वाइब्रेशन ये दोनों इक्वल हो गए तो वो ब्रिज लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा और मे बी कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे मार्चिंग के लिए उनको स्टॉप करने के इंस्ट्रक्शंस बोले जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून करती है तो रेडियो की आवाज़ हमें कब सुनाई देती है लार्ज एम्पलीट्यूड में, जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये दोनों जब मैच होते हैं तो हमें क्लियर साउंड सुनाई देता है। तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है रेजोनेंस के। इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, ये उसका ग्राफ है। इसमें होता है एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे और फोर्स फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमें एफ इज इक्वल टू एफ आर मिल रहा है, तो यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड मिल रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों भी क्या है, इक्वल है। उसकी वजह से लार्ज एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। और इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स होंगे जिसमें हर एक टॉपिक मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसके बाद वो वीडियो अपलोड करूँगी सेपरेट से, तो सब लोग नोट्स कॉपी कर लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।